Hello everyone. Today we are going to cover the unit of perception. In this unit, we'll deal about these various topics which includes the definitions and the nature of perception. Thereafter, we will deal with the topic of attention, how your attention is influencing your perception. And the third topic which we will be covering is perceptual organization. तो आज हम परसेप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम परसेप्शन के डेफिनेशंस और परसेप्शन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अटेंशन है, जो हमारा ध्यान है, ये हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देयर आफ्टर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये लॉ किसने दिया था। सो कॉन्सेप्चुअल अगर हम लोग बात करें तो perception, before jumping directly onto the perception, we need to understand what is sensation. So in normal cases में बिना sensations के perception possible नहीं है. Perception is a process through which we organize and interpret the stimulus or the sensory information. और ये जो sensory information है ये हमें various sensory organs से मिलते हैं and we have 5 sensory organ which is your eyes, ear, nose, tongue and the largest sensory organ is the skin. So इन modalities के through हमें अपने environment से informations receive होते हैं. When we become aware of the sensory stimulus and the information, that means it is causing some sort of sensation to us. It is stimulating our sense organ, जो हमारे sense organ है eyes, ear. So various sensory information, चाहे वो visual हो, auditory हो, gustatory हो, smell हो, touch हो, ये information हमारा sensory organ process करता है which gives us sensation. When we give meaning to these stimulus, these information, organized it and interpret it in a meaningful manner, that means we are perceiving it. So normal cases में perception के लिए sensation या sensory stimulus का होना ज़रूरी है. If you are perceiving in the absence of any sort of sensory stimulus or information, यानी कि perception without sensation हो रहा है, that means it is a clinical case and you are experiencing hallucination, which is a part of a psychotic symptoms, and it will be classified as disorder. So in normal cases, the normal population experiences and perceive everything in presence of some sort of sensory stimulation. So सेंसेशन में हम किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिसीव करते हैं, वी कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन and transmit the information in the more meaningful way. So perception is the process of selecting, identifying, organizing and interpreting all the sensory information in a useful and meaningful manner. So it is a method in which ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ये हमारे ब्रेन को पहुंचती है. ब्रेन में जितने भी एरियाज हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल द ब्रेन हैज़ हेमिस्फेयर and each hemisphere is divided into lobes. So different lobes are there to process different sensory information. चाहे विजुअल इंफॉर्मेशन हो उसके लिए ऑक्सीपिटल लोब जिम्मेदार है. फ्रंटल लोब हमारे मोटर फंक्शनिंग एंड हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. टेम्पोरल लोब आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड पैराइटल लोब प्रोसेसेस योर टच एंड टेक्टाइल इंफॉर्मेशन. सो हमारी ब्रेन्स जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं उसको लेते हैं, मीनिंगफुल मैनर में इंटरप्रेट करते हैं एंड thereafter it allows the individual to perform and behave appropriately. So sensation and perception ये दो functions भले हों but it does not functions individually, rather they function all together to give us an experience of the world around us. और ये experiences हमें अपने various sensory organs के through मिलती है. So talking about the technical definitions given by various theorists, Joseph Reeds ने दिया था that perception includes
all those processes by which an individual receives information about his environment, or through seeing, hearing, feeling, tasting and smelling. So simply जोसेफ रीड्स ने बोला था कि परसेप्शन, जितने भी आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहे हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, हम उसको रिसीव कर प्रोसेस करते हैं. दिस प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज परसेप्शन. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें वेरियस मोडालिटीज़ से मिलती हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो गिलमर ने जो अगला डेफिनेशन दिया था, दैट परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऑफ एडिंग मीनिंगफुल एसोसिएशंस टू सेंसेशंस. सो इन द सराउंडिंग यू आर इन, यहाँ पे जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, जितने भी स्टिमुलस आपके आसपास हो रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ सराउंडिंग, देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल. यू आर सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन विच एवर इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. आप उन इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोसेस कर रहे हो बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन. सो एस.पी. रॉबिन्स ने डिफाइन किया था perception as the process by which an individual organizes and interprets their sensory impression in order to give meaning to their environment. So all the definitions are more or less have the same meaning, that in perception आप sensory information को receive करते हो, organize करते हो, meaningful manner में interpret करते हो. So nature of perception की बात करें तो it is basically a process जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, वो उनको मीनिंग देते हैं एंड मीनिंगफुल मैनर में इंटरप्रेट करते हैं. पीपल्स एक्शन, इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर ट्रिगर्ड बाय देयर परसेप्शन ऑफ देयर सराउंडिंग. सो परसेप्शन इज नॉट ओनली गिविंग मीनिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस. बिकॉज ऑफ द परसेप्शन आपके इनर फीलिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो आपके अपने थॉट्स हों, आपके इमोशंस हों, आपकी फीलिंग्स हों, एंड अप्रोप्रिएट आपका एक्शंस होता है एज पर योर परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिचुएशन, if you have perceived something dangerous, it will stimulate you internally and it is going to arouse you, and that arousal is going to reflect through your action. So if you have confronted something dangerous, you are more likely to run away. That is your action. And stimulation of emotions and thoughts, that is internal, the rush going into your head, that will make you to act accordingly. So आपका perception आपके बाकी इन तीनों aspects को भी influence करता है. So it is not something, maybe if we talk in a process, so it includes 3 to 5 steps, but it is very automatic. It is not something कि हम लोगों ने if you are likely to cross a road, आप एक गाड़ी को देख रहे हैं, तो it is not something कि आप वहाँ पे खड़े हो, you are analyzing the car, you are analyzing its speed and the distance. You know that a car is coming and you need to protect yourself, so automatically you will distance yourself from the car. So it is an automatic process. You are not going to give hours and hours and minutes in processing the information coming. It is because हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी गवर्न होते हैं. हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने किसी को देखकर सीखा होगा कि दैट कार माइट बी अ डेंजरस थिंग, इफ वी कम near the car we might get injured. So आपका एक्शन होता है कि आपने उससे बचना है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो इट इज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड. सो परसेप्शन इज ऑलमोस्ट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस and it works in the same way within each individual, yet it typically yields different perception. So it is not something which may differ, it is not something that is happening with a single individual. कोई एक circumstances majority of लोग के लिए वो similar ही information provide करेगा. So a dog coming to you, a snake coming to you, you are perceive it as a dangerous object only and you are more likely to run. So it is almost automatic process, and for each individual this processing is more or less similar. Though many people react, their reaction could be different to some extent. हो सकता है कि if a snake is coming to you, majority of you
might run away that situation, but few might stay there and हो सकता है वो स्नेक को मारने की कोशिश करें, but that is a source of danger only, that is a scene of danger only that everybody would perceive it. So it is an intellectual process. Intellectual process why? Because आप कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस को जब आप परसीव कर रहे होते हो, you are putting all your past experiences, your basically the intelligence portion, which includes the reasoning ability, the judgment ability, the thinking ability, the memory you have about that particular object. So आप जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट देखते हो, although it is a big process inside your brain, but it is very automatic and very quick. So इस वजह से ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बिकॉज आप जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं आप उसमें अपनी मेमोरी, अपनी लर्निंग, अपना रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, आप सब कुछ अप्लाई करते हो, ऑल्दो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग. सो perception is something related to your cognitive process, or you can say the psychological process. Cognitive या psychological, these are the mental processes जो कि दिखता नहीं है, ये internally it goes on in your head, in your brain only. It is not something visible. So it becomes a subjective process and different people may perceive the same event differently. So हो सकता है एक सेम इंडिविजुअल को एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आप अगर 10 लोग हो तो उस 10 लोगों के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, बस उस इन्फॉर्मेशन को हो सकता है वो 10 लोग अलग अलग परसीव करें. फॉर एन इंस्टेंस, इफ़ यू आर सीइंग क्लाउड in a good sunny day, if you're seeing cloud, that cloud is a stimulus, is a sensory information to all of you, but the same shape of cloud could be perceived in different shapes by everyone. हो सकता है कोई क्लाउड को किसी ने कैट के शक्ल में परसीव किया है, किसी ने एलिफेंट की शक्ल में परसीव किया, बट यू आर परसीविंग द क्लाउड ओनली. तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इन परसीविंग द सेम स्टिमुलस इन डिफरेंट मैनर, इट बिकॉज हर इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी होती है ना, एवरी इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सो दैट इज इन्फ्लुएंसिंग देम टू परसीव अ पर्टिकुलर स्टिमुलस डिफरेंटली फ्रॉम अदर. सो परसेप्चुअल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो कितने स्टेजेस इन्वॉल्व्ड होते हैं परसेप्शन के लिए. तो परसेप्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास एक स्टिमुलस हो, एक स्टिमुलस यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंस हो. वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसी भी नेचर का हो सकता है, चाहे ऑडिटरी हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, एक फिगर के फॉर्म में हो सकता है जिसे आप देख रहे हैं, एक स्मेल हो सकती है जिसे आप सूंघ रहे हैं, एक टेस्ट हो सकता है जब आप कुछ खा रहे हो, या समथिंग विच इज़ टचिंग योर स्किन, एक टच के फॉर्म में हो सकता है. तो सबसे पहले एक स्टिमुलस का होना ज़रूरी है. देर आर मल्टीपल स्टिमुलस यू आर रिसीविंग, सो द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस इज मस्ट दैट यू नीड टू रिसीव. देर आफ्टर यू नीड टू सिलेक्ट द स्टिमुलस. आप अगर एक कमरे में बैठे हो, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टिमुलस अराउंड. आपके लैपटॉप होंगे, आपके फ़ोन होंगे, आपके बुक्स होंगे, पर उन स्टिमुलस में भी कौन सा स्टिमुलस या कौन सा स्टिमुलाई या कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू सिलेक्ट दैट स्टिमुलस एंड द रेस्ट आर स्क्रीनड आउट. जो ज़रूरी नहीं है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और हम उसको हटा देते हैं. सो वट एवर द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट टू यू, यू सिलेक्ट दोज स्टिमुलस. देयर आफ्टर वो जो सिलेक्टेड स्टिमुलस हैं, आप उन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने दिमाग में स्टैक करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड organization. Once you have organized those information, then you interpret those information in meaningful manner. So it is mostly the subjective areas of the perception. क्यों? Again I am repeating. एक stimulus 10 लोग perceive करेंगे as a stimulus, but while interpreting, every individual might interpret that particular stimulus on the basis of their own judgment and their own thinking process. So it becomes subjective at the time of interpretation. For example, your exam. ठीक है? So if you have uh, a date sheet कि after 10 days your exam is going to happen.
तो for few of the people they might start preparing for the exam while rest of the people might die in the apprehension कि अरे अब तो एग्ज़ाम होने वाला, अब क्या होगा, पढ़ाई नहीं हुई है, नोट्स नहीं है, while rest other हो सकता है वो इंडल्ज हो जाएं कि नोट्स कलेक्ट कर लें और पढ़ाई अपनी शुरू कर दें, जो अवेलेबल है मटेरियल पहले उस पे फोकस कर दें। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं एंड व्हाट इज़ द पैटर्न to solve the problem you have. So this was one instance. So coming on to the role of attention in perception. So talking about the definition what attention is. It is the concentration of awareness on some phenomena to the exclusion of other stimuli. So attention यानी कि ध्यान. आपके पास मल्टीपल स्टिमुलस है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, आप उनमें से भी आपका फोकस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, आप किन स्टिमुलस को अटेंड कर रहे हो, एंड while excluding others, that means you're putting your concentration on a particular thing. So it is the ability to actively process specific information in the environment while turning out other details. So within the environment there are thousands of informations available, but out of those thousands only few are being attended. Why? Because for an individual only those particular informations are important. So it is an active process जिसमें आप environment के कुछ particular informations को ही receive करते हो, आप उसको attend करते हो, process करते हो, synthesize करते हो, while the rest of the information are being screened out and are not given due importance. So attention is very important in perception. Why? अगर आप हर चीज़ों पे अटेंड करने लगोगे तो you might not able to perceive the information properly. So to avoid distractions बहुत ज़रूरी है कि हम particular informations को ही अटेंड करें जो important हो. So on the ground of attention, how attention influences the perception, we will be talking about two theories. दो theories की बारे में हम लोग बात करेंगे, एक हमारा filter model और दूसरा हम लोग बात करेंगे the information processing this capacity model. So according to filter model, it says that there are various information available in our surrounding, but human beings have the tendency to filter out the information which is important through our sensory channels, and rest are blocked, partially blocked out or being ignored. तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस में भी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं हम उनको रखते हैं, फिल्टर करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन से, और उनमें से भी जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको ड्यू इम्पॉर्टेंस देके बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस को हम इग्नोर कर देते हैं. सो दैट व्हाट being explained by the filter theory. The next information processing theory of attention are based on the processing capacity. So Kahneman का ये concept है that every individual has a limited mental capacity for processing information. We are human being, we are not machines that हमारा जो अपना डेटा है किसी भी तरीके का हार्ड डिस्क लगा के हम अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी या इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें. सो वी हैव सम कैपेसिटी विच इज़ लिमिटेड. तो while processing informations also, we human being has a limited capacity to process information at one time. So at one time we cannot process and synthesize thousands of information. So instead we must allocate our limited resources, our processing capacity, to one set of inputs or other. So therefore we only focus on the aspect which is important to us, and while ignoring rest of the information. Coming on to the perceptual organization, this is the third topic. So perceptual organization क्या है? हमारे पास informations आती हैं बहुत तरह की, हम उन information को organize कैसे करते हैं ताकि हम enable हो to interpret those informations. वो informations हमें किसी भी form में आ सकते which will look
in our next slide. So perceptual organization बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम आउटसाइड से जो भी स्टिमुलस या जो भी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं हम उनको एक ग्रुप में या समूह में बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं, सो दैट हम उन इंफॉर्मेशन को इजीली आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें एंड एज अ होल उस ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशंस को परसीव करें. So it is an ability to take in visual, auditory and sensory information and use that information effectively to accomplish a task. तो हमारे पास जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं हम उसको लेकर उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और उन इंफॉर्मेशंस को हम यूज़ करके अपने जो भी टास्क हैं, जो भी वर्क हमारा है या गोल है, हम उसको अकॉम्प्लिश. सो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था. एंड द स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंड बाय जर्मन थिंकर्स एंड Wertheimer, Kohler and Kafka were among them. So according to Gestalt school of psychology, Gestalt means a good figure or a good form. So according to Gestalt psychologist, we perceive different stimulus not as a discrete elements but as a whole. So according to Gestalt psychologist, इनका मानना ये कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस आते हैं हम उनको टिट्स एंड बिट्स में नहीं, टुकड़ों में नहीं, बल्कि एज अ होल अज्यूम करते हैं, एज अ होल परसीव करते हैं. सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कहना था कि द होल इज डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. सो द फोकस इज ऑन द होल इंफॉर्मेशन, नॉट ऑन द सब पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो उन्होंने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल डेवलप किए थे टू एक्सप्लेन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशंस. जो भी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं हम उनको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे और इन प्रिंसिपल्स को हम लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन इज फिगर एंड ग्राउंड. फिगर एंड ग्राउंड में क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर सीइंग अ प्रॉब्लम, सो हम उनको दो एस्पेक्ट में देखते हैं, या तो एक फिगर में देखते हैं, दूसरा ग्राउंड में. तो आपका जिस चीज पे फोकस पड़ रहा है दैट बिकम्स द फिगर एंड रेस्ट पोर्शन बिकम्स द ग्राउंड. फॉर इंस्टेंस आई हैव गिवन दिस पिक्चर, सो इफ यू वुड फोकस ऑन द ब्लैक एस्पेक्ट you will get to see a figure of a tree, but if you'll shift your that this is the figure part, but if you shift your attention to the white background, this is the background, you will get to see the pictures of two animals. So this is how as a whole you are perceiving one stimulus. You are not seeing it as a branch or as a leaf and thereafter you are able to interpret this as a tree. You are seeing it as a whole. So in your general life also, आपकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप उसमें से भी जिस चीज़ पे आप फोकस देते हो, फॉर एग्जाम्पल देयर लाइक मल्टीपल हैसल्स गोज ऑन इन अ पर्सनस लाइफ, चाहे डे टू डे बोलिए आप या समथिंग विच हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस लाइफ. तो आप उसमें से जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, that means you are focusing on that aspect more, that becomes the figure part, and rest what you are ignoring and not paying due attention, that becomes the background part. तो पहला प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन यही है कि हम फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में चीज़ों को परसीव करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बैकग्राउंड इज इनसेपरेबल फ्रॉम द फिगर. So the figure is always perceived to be in contrast to its background and hence it will be noticed. The perception. So okay, so here we'll see कि हम किस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन को फिगर एंड ग्राउंड के एस्पेक्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, हम किस पोर्शन को फिगर कंसिडर करते हैं एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड. सो फिगर, फॉर एग्जांपल एज अ in a cloud, if you are seeing a sky, so it has some definite form. Any figure will have some definite form, while the background is relatively, it has no any definite form, it is formless. So as you have seen in the previous slide also, the figure in that slide, the tree was the figure whereas the white portion was the background.
So you have seen that the tree, the black portion has had some definite form, and while you focused your attention on the black portion, you got to see a tree out there. It was a tree, while the background was completely white, though it had a figure, but it didn't had any significant form. So these are the characteristics. How can you define what a picture, in a picture, while perceiving any information, what portion is figure and what portion is background. सो फिगर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर्ड टू इट्स बैकग्राउंड. सो फिगर में एक क्लियर आउटलाइन होती है, एक प्रॉपर फिगर होता है, वाइल बैकग्राउंड में कोई कॉन्टोर या कोई आउटलाइनिंग नहीं होती है. इट इज़ एज वी हैव सेड अर्लियर, इसमें कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर नहीं होता है. सो जो फिगर है ये बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग होता है, वाइल बैकग्राउंड इंटैक्ट रहते हैं विद द फिगर. अगर आप अभी भी देख रहे होते हो, आप अगर उस ब्लैक वाले ट्री को किसी और बैकग्राउंड में आप रख दो, दैट विल हैव अ डिफरेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. वाइल बैकग्राउंड में अगर आप उस वाइट पोर्शन में ट्रीज को रिमूव करके कोई और एक पिक्चर लगा देते हो, देयर आफ्टर आप जब बैकग्राउंड में फोकस करोगे तो वो जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. So this happens with in our general life also, while dealing with our daily life problem. तो हमारा जैसे ही अटेंशन शिफ्ट होता है उस पर्टिकुलर सेंटर प्रॉब्लम से, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है. हो सकता है हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए हमारे लिए. जैसे ही आपने हो सकता है अपना जो मेजर प्रॉब्लम है उसको टैकल किया, तो जो प्रॉब्लम्स पहले बैकग्राउंड में चल रही थी वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, सडनली दैट विल बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू यू. सो फिगर्स जब आप परसीव करते हो वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, ज़्यादा लिमिटेड होते हैं. वेयर एज जब आप बैकग्राउंड को आप जब देख रहे हो, इट इज़ relatively not that much clear and it is unlimited, as we have seen in our previous slide also. So the next principle is proximity. This proximity says that the objects close to one another as part of the same grouping, which is a principle called proximity. So कोई भी object अगर जितना, this is also called nearness. So कोई भी object जितना closely placed है एक दूसरे से, हम उसको as a part of group समझते हैं. यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं 4 कॉलम्स एंड 4 रोज में. यहाँ पे जब इनको बीच से डिवाइड किया गया, बिफोर वाले पोर्शन में ये चारों एक साथ और एज अ ग्रुप वी आर कंसिडरिंग, वेयर एज जब हम इसको बीच से स्प्लिट करते हैं तो इट बिकेम टू डिफरेंट ग्रुप. सो जैसे ही हम इसको वापस इनकी जो डिस्टेंस है इसको क्लोज कर देंगे, इट विल बिकम वन ग्रुप. दैट्स व्हाट गेस्टाल्ट सेज, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. We perceive the stimulus, the object, as a whole and not as a distinct part. So proximity is one principle which enables us to consider it as one group. So ये जितना close है ये हमारे, हम उनको एज अ ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं. जैसे ही इनके बीच का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो दूर हुआ है, इट बिकेम टू डिफरेंट ग्रुप. प्रिंसिपल इज सिमिलैरिटी. कोई भी इंफॉर्मेशंस अगर उनकी लुक मोर और लेस सिमिलर हो, वी कंसिडर इट एज अ ग्रुप मेंबर, एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने क्रिकेट टीम का कोई मैच देखा हो और अगर कभी स्टेडियम में देखा हो या टीवी पे भी देख रहे हो, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वो टीम मेंबर्स किसके हैं. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो टीम मेंबर कौन है, but because the members are wearing the same color jersey, and that same color making them to look similar, more or less similar to each other, and thereafter we are able to recognize कि हाँ ये टीम इंडिया से है and the other member is belongs to some other team. So जो भी इंफॉर्मेशंस अगर दिखने में सिमिलर हो तो हम उनको एक ग्रुप में कंसिडर करते हैं, दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप. सो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि द इमेजेस, देयर आर
rectangle, there are rectangle and circle, and they're placed in one alignment. So here we are perceiving that this belongs to one group, the rectangular group belongs to one group, and this circle belongs to one group because they are similar in shape. That is why we are considering कि ये एक group के members हैं and दूसरा shape दूसरे group के members हैं. The next principle is principle of closure. So बचपन से ही जिस environment में हम रह रहे हैं, जिस surrounding में हम रह रहे हैं, तो we have the tendency of completing the figures. So चाहे आप कोई भी कभी बुक्स रीड कर रहे हो, कभी कोई इंफॉर्मेशन देखा हो, कोई टीवी पे कोई कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, चाहे वो आधा अधूरा ही क्यों ना हो, वी हैव द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर, अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल. This is not a complete picture. Still, we are able to fill the gaps of fear and we are able to recognize it as square, as a circle and triangle. क्योंकि हमारे past experiences में भी we have seen such kind of pictures in a complete form, and that is why by using all those information, जो भी हमारे past experiences हैं, past information, हम उनको use करके इन gaps को fill कर रहे हैं and we are able to recognize it as square, circle and triangle respectively. Principle is continuity, which refers to the tendency to perceive things as simply as possible with a continuous pattern rather than with a complex broken up pattern. So we human beings have a tendency to perceive things in a continuous pattern. So आप अगर यहाँ पे भी देख रहे होगे, अगर मैं अगर किसी आपको तुरंत देखने से लगा होगा कि इट इज़ अ साइन ऑफ अ क्रॉस, राइट? बट इंडिविजुअली दीज आर जस्ट डॉट विच हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ पैटर्न लाइक दिस. सो हम ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी होता है कि किसी भी सिंगल पैटर्न को किसी भी सिंगल डिज़ाइन को एक पैटर्न में अगर अरेंज कर दिया जाए तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस फिगर टू अस. So again, we are perceiving it as a whole and not as an individual dot. Rather, we are perceiving it as a sign of cross. And this is the major center theme of the Gestalt psychology, that we perceive information as a whole. हम information को as a whole perceive करते हैं, ना कि broken tits and bits pattern में. So individually अगर देखा जाए तो these are just circle. पर इन circle इन dots को एक पैटर्न में अरेंज किया गया है एंड हम ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी होता है कि हम अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट, व्हाट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सेज, कि हम इंफॉर्मेशन को होल में परसीव करते हैं. तो दैट इज व्हाई वी आर परसीविंग इट एज अ क्रॉस एंड नॉट एज जस्ट डॉट्स. सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी. इस प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल विच वाज एडेड लेटर ऑन. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि जब दो मोडालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे प्रोड्यूस किया जाए तो हम उसे एक सिंगल इंफॉर्मेशन की तरह परसीव करते हैं. और इसी फिनोमिना को वेंट्रिलोक्विस्ट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल को एक फॉर्म ऑफ इल्यूजन क्रिएट करने में. सो वेंट्रिलोक्विस्ट बेसिकली वैसे लोग होते हैं, वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो डमी पपेट्स का जो शो करते हैं, वैसे लोग इस फिनोमिना को यूज़ करते हैं. तो अगर दिस इज़ वन एग्जाम्पल. सो इसमें क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन इन फेयर और इन टीवीज़, सो उसमें क्या होता है कि ऐसे पपेट्स को स्ट्रिंग से अटैच करते हैं, स्ट्रिंग से उनके बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं, उनके माउथ मूवमेंट कराते हैं. दैट इज़ वन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द विजुअल इन्फॉर्मेशन. आप आंखों से उनको देखकर रिसीव कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम जैसे ही उनके माउथ को ये मूवमेंट को क्रिएट किया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ विजुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशंस भी या ऑडिटरी स्टिमुलस भी प्रोवाइड किया जाता है. जैसे पपेट शोज़ में करते हैं कि ज़ुबान हिलाया और पीछे से आवाज़ आई, मेरा नाम XYZ है. तो हम जो देख रहे होते हैं हमारे लिए होता है कि ओके ये पपेट से आवाज़ आ रही है. सो दिस वाज वन एग्जांपल. इसके अलावा जो पिक्चर्स में आप लोगों ने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, तो उस मूवीज़ में भी देखा होगा कि डॉल्स की ज़ुबान हिल रही होती है.
but that is a non-living being and it can't speak. So it is the वॉइस दैट इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, लेकिन वो वॉइस और वो मूवमेंट है वो सेम टाइम पे अकर हो रही हैं, सेम टाइम पे उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हम उसे एज अ सिंगल इन्फॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं. सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी. Since this is a GE subject, general elective subject, so I am not covering the majority of the portion. So this would be okay for now, and if you have any doubt, you can consult me later in the classes.